Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and we are back with our online lectures of subject materials and metallurgy. Okay, and in previous videos, we have completed unit number one and unit number two, and we were almost done with the unit number three of this subject. And this unit number three is nothing but heat treatment of steels. We have completed six parts, six lectures of this unit, and today we are going to continue with the part number seven. And in previous parts, we have discussed various types of heat treatments of steels, like various softening processes like annealing, normalizing, as well as we are done with hardening processes like conventional hardening, full uh, hardening, as well as various Haas tempering, Mar tempering, and various types of tempering processes, tempering colors. What do you mean by temper brittleness, and like some other topics. Okay, in today's topic, we are going to cover another point, that is surface and case hardening. Okay, so uh, we have seen the heat treatment process. In general, heat treatment process consists of three stages. Stage number one is heating the specimen or heating the steel up to its austenitic temperature, up to its recrystallization temperature, where the phase change occurs, where the major phase change, that is the perlite or whatever the content of the steel is present there, it gets converted into austenite, and afterwards the steel is soaked, or you can say hold for few hours based on its size, its mass, and after that process, the steel is then cooled by various mediums, like in annealing, it is cooled itself in furnace by turning off the furnace, as well as in normalizing, it is cooled with air by taking out the specimen from the furnace, and in hardening, it is quenched, it is rapidly cooled by using water or some oil medium. Okay, so these all processes, they make microstructural changes in the steel. Okay, and majorly these change occurs in overall area, or you can say overall mass of the component. Okay, these major changes occurs in overall component, but sometimes these changes are not uniform, and there are some sort of applications like load bearing structures. Some of the applications of these steels is in cams, in manufacturing of cams, gears, shafts, spline shafts, various circular parts, various discs, where these parts are meant to be a load bearing structure. Okay, and these load bearing structures need to have some hardness, some wear resistance, some scratch resistance on the external surfaces. Okay, suppose this is a you can say a disc, or is a shaft. Okay, and this shaft is having two different parts. One is your surface, where the tips of the gear will be, or you can say this is a disc, or this is a plate from which a gear is to be manufactured. Okay, and suppose there are some tips present on this disc. Please mind my drawing because I'm using mobile. So these teeth, uh, which are present on the exterior periphery, or you can say which are present on the periphery of this disc, they need to have more hardness, more wear resistance, more abrasion resistance, because they are going to get they will be in contact with some other gears, with some other parts, right? So they need to be somewhat more harder as compared with the rest of the body. Now these teeth are going to be coming in contact with some other teeth. Okay, so these teeth, when they are meshing, there will be some kind of impact which will be coming directly on the teeth, which will be you can say first of all, which will be faced by the surface, and these shocks, these
you can say intersections will be having various types of loads, various types of forces. Okay, and these forces are going to act on the teeth. Now this teeth must be hard enough to resist or to bear these shocks, these loads. Okay, so this teeth must be hard. Okay, as well as if these teeth are made really more hard, or if they are made very hard, this teeth will become brittle. Hence, whenever there is some kind of shock coming on this teeth, it is possible that the teeth may get fractured or the teeth may get broken. Okay, so in such kind of applications, the teeth should be hard enough, and the core, which is the central part of this gear or any shaft or any disc, this should be tough enough. Now, when I'm saying tough, it means that it should be shock absorbing. Okay, shock absorbing, like it should be little bit softer as compared with the surface. हमें यहाँ पर इस टिथ में क्या चाहिए, इस गियर में क्या चाहिए कि गियर की जो टिथ है, ये जो आउटर सरफेस है शाफ्ट का, वो आउटर सरफेस हार्ड होना चाहिए ताकि उसका वियर रेजिस्टेंस रहे, स्क्रैच रेजिस्टेंस रहे, और साथ ही साथ में जब वो किसी दूसरे पार्ट के साथ मोशन में आएगा, कुछ उसके बीच में मैकेनिकल वर्किंग होगी, तब जो मोशन है या जो मूवमेंट है या जो भी चीज़ें उसकी वजह से होने वाली है, इस वजह से जो शॉक्स वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, वो शॉक्स जो भी है हमारे टिथ से ट्रांसफर होके कोर में जाने चाहिए, ताकि जो भी शॉक्स है वो क्या हो जाए, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए. सो इन सच काइंड ऑफ ऑपरेशन वी नीड टू मेक surface, or you can say case, a little bit hard as compared with the remaining core. Okay, so ऐसे applications में हमको जो heat treatment करना है वो हमारा regular heat treatment नहीं रहता है. Okay, so in such kind of cases we perform surface and case hardening. Okay, now uh, in such cases, when you want the surface to be hard and core to be a little bit softer, a little bit tougher to absorb the shocks, the conditions are like this is because in some services or in service, metal piece is never stressed uniformly throughout its section. कोई भी metal piece, कोई भी metal का material, ये थ्रू आउट द सेक्शन यूनिफॉर्मली उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई नहीं होते हैं. ओके, ये एक रीज़न है जहाँ पर हमको कोर सॉफ्ट चाहिए और जो सरफेस है वो हार्ड चाहिए. दूसरा रीज़न है रोटेटिंग शाफ्ट जो है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो रहते हैं ये सरफेस पे आते हैं और कोर पे या सेंटर में मिनिमम स्ट्रेसेस आते हैं. साथ ही साथ में फटीग और वियर जो है ये हमेशा सरफेस पे स्टार्ट होता है और फिर कोर की तरफ बढ़ता जाता है. आप एक सर्कल अगर इमेजिन कर रहे हो, एक शाफ्ट अगर इमेजिन कर रहे हो, तो जो रेजिस्टेंस या जो भी वियर रेजिस्टेंस है या जो सरफेस है, इस सरफेस से फेलियर शुरू होकर कोर की तरफ आएगा. ओके, फ्रॉम सरकमफरेंस और फ्रॉम पेरीफेरी टू दी सेंटर ऑफ एक्सिस. ओके, सो वहां पर आएगा. सो दैट्स वाई कोर कैसा चाहिए हमको, सॉफ्ट चाहिए, और सरफेस कैसा चाहिए, हार्ड चाहिए. ओके, ऑन सरफेस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अपीयर्स फ्रॉम स्क्रैचेस. जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो स्क्रैचेस की वजह से आता है, टूल के मार्क्स की वजह से आता है, पुअर फिलेट्स देने की वजह से आता है. सो देयरफॉर ऐसी चीज़ें, ऐसी शाफ्ट्स, ऐसे कैम्स, ऐसे गियर्स, ऐसे हमारे स्प्लाइन शाफ्ट्स या जो भी सर्कुलर पार्ट्स रहेंगे या जिसके ऊपर सरफेस हार्ड चाहिए, जिसका कोर सॉफ्ट चाहिए, ऐसे कंपोनेंट्स का जो हीट ट्रीटमेंट है वो हम दो मेथड से करते हैं. एक रहता है सरफेस हार्डनिंग और दूसरा रहता है केस हार्डनिंग. ओके, अब डिफरेंस क्या है केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग में? देखो, दोनों भी कंडीशन में, दोनों भी केसेस में, इन बोथ ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू मेक द सरफेस हार्ड. दोनों भी केस में हमको क्या करना है, सरफेस हार्ड बनाना है. ओके, अब केस हार्डनिंग क्या रहता है कि केस हार्डनिंग में हम सरफेस हार्ड बनाते हैं. ओके, वी मेक द आउटर सरफेस हार्ड बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन. अब जो सरफेस रहेगा, इस सरफेस के ऊपर या जो भी सरफेस रहेगा, इसका हम क्या करेंगे, केमिकल कंपोजिशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे. ओके, ये रहेगा मेरा केस हार्डनिंग. ओके, अब केमिकल कंपोजिशन कैसा चेंज करेंगे वो मैं बताता हूँ, बट
जो सरफेस हार्डनिंग है, दोनों भी चीजें अलग है। केस हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग में आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है, जो कि हार्ड बनाया जाएगा बाय प्रोड्यूसिंग अ केस। उसके बाहर के सरफेस पर एक केस बनाकर, केमिकल कंपोजिशन चेंज करके, ओके, ये रहेगा केस हार्डनिंग। और बिना किसी केसिंग बनाए के, बिना किसी केमिकल चेंजेस के, बिना किसी केमिकल कंपोजिशन में चेंज लाए के सरफेस अगर आप हार्ड बना रहे हो, उसको बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग। सो केस हार्डनिंग इन विच केमिकल कंपोजिशन एट सरफेस विल बी मॉडिफाइड। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे? सो केस हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग है। ओके, सो केस हार्डनिंग में हम जनरली क्या करते हैं कि जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे कार्बन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। इस सरफेस पे कार्बन और नाइट्रोजन का अमाउंट क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। अब कार्बन और नाइट्रोजन का अमाउंट कैसे बढ़ाते हैं? तो बाय means of carburizing, by means of nitriding, by means of carbonitriding, by means of cyaniding, ये जितनी प्रोसेसेस दिख रही है ना, इन प्रोसेसेस की मदद से हम क्या करते हैं, जो आउटर सरफेस रहेगा, इस सरफेस पर एक कार्बन का थिन लेयर विच इज वेरी स्मॉल, ऐसा थिन लेयर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फॉर्म करते हैं। ओके, बाय मीन्स ऑफ सम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, सो कार्बन का या नाइट्रोजन का उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, एक लेयर लगा रहे हैं। जैसे आप आपकी घर की दीवारों को या कोई भी मेटेलिक पार्ट को क्या करते हो, कई बार कोटिंग करते हो, पेंट करते हो, जिसकी वजह से उसका एक्सटीरियर सरफेस जो है वो डैमेज होने से बच जाए, राइट। कई बार मोटरसाइकिल के ऊपर, आप आपकी बाइक्स के ऊपर, कार्स के ऊपर कोटिंग चढ़ाते हो, राइट। टेफलॉन कोटिंग बोलते हैं, कई बार लिक्विड कोटिंग बोलते हैं, कई बार कोई ऑल बहुत सारे टाइप की कोटिंग्स आती है, सेरामिक आती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो सरफेस है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते, राइट। सो इसी तरीके से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन की। ओके, अब ये लेयर चढ़ाने की, ये हमारे पास में चार अलग अलग मेथड्स है: कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग। ओके, सो फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी इज कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग की तीन टाइप्स हैं। अब कार्बोराइजिंग में क्या रहेगा, कार्बन का लेयर बनाया जाएगा हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे। ओके, जो कोर रहेगा वो ऑलरेडी हमको सॉफ्ट रखना है, मतलब वो एनिलिंग या नॉर्मलाइजिंग से बनाया जाएगा वो कंपोनेंट। और नॉर्मलाइजिंग होने के बाद में उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कार्बोराइजिंग किया जाएगा, ताकि सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे क्या बन जाए, एक हार्ड लेयर कार्बन की फॉर्म हो जाए। ओके, उसको हम बोलते हैं केस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज केस हार्डनिंग। सो पहला क्या है, कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग की तीन टाइप है: सॉलिड कार्बोराइजिंग, या जिसको बोलते हैं पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा है गैस कार्बोराइजिंग, और तीसरा है लिक्विड कार्बोराइजिंग। सो मैं फास्ट पैक कार्बोराइजिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैक कार्बोराइजिंग में क्या रहता है कि एक स्टील का बॉक्स रहता है। इस स्टील के बॉक्स के अंदर जैसे आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, सो एक स्टील का बॉक्स रहता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज अ स्टील बॉक्स। ओके, ये स्टील के बॉक्स में क्या रहता है कि जो कंपोनेंट है, जैसे ये वाइट पोर्शन है, सपोज दिस इज योर कंपोनेंट। ओके, सो ये कंपोनेंट को इस स्टील के बॉक्स में रखा जाता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, एक नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट्स स्टील बॉक्स में रखे जाते हैं। और इस स्टील बॉक्स को चारों पांचों साइड से पूरी तरीके से बंद किया जाता है, और उसके बाद में इसमें एक कार्बन मीडियम डाला जाता है। ओके, अब ये कार्बन मीडियम क्या रहता है, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ चारकोल, कोक, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, और उसके परसेंटेजेस यहाँ पर दिए हैं। मतलब कोयला इसके आजू बाजू में क्या किया जाता है, भरा जाता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, सो स्टील बॉक्स रहेगा, इसमें कंपोनेंट रखे जाएंगे। इन कंपोनेंट्स के आजू बाजू में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कार्बन रिच मीडियम है, जैसे कि चारकोल है, कोक है, बेरियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनका मिक्सचर इसके अंदर भरेंगे। अब इस मिक्सचर को कंप्लीटली एयर टाइट किया जाता है, पूरी तरीके से चारों तरफ से इसको बंद किया जाता है। सिर्फ उसके अंदर जो एयर है, वो जितना बॉक्स में जो एयर रहेगी उतनी ही एयर उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। ओके, बाकी का पूरा की पूरा जो बॉक्स है वो कंप्लीटली सील्ड किया जाता है। इसके कॉर्नर्स पे, एजेस पर, जहाँ पर जॉइंट्स है, वहां पर पूरी तरीके से मिट्टी लगाई जाती है, ताकि किसी भी तरीके की एयर इसके अंदर पास न हो सके। ओके, और इस स्टील बॉक्स को बाद में रखा जाता है फर्नेस में, या इसको डाला जाता है भट्टी में। ओके, अब भट्टी में डालने पर क्या होता है
इसके अंदर हीट ऐड होती है। इसको स्टील बॉक्स को हमको 950 डिग्रीज तक क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जब आप उसको हीट करते हो, जब आप उसको हीटिंग करते हो, तब क्या होता है, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, जो भी चारकोल है इसका जो बॉक्स में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ में कम्बिनेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि डिसोसिएशन उसका स्टार्ट होता है, मतलब उसका सेपरेशन स्टार्ट होता है कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो ये जो सेपरेशन है, ये जो डिसोसिएशन है, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, मतलब CO2 प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हार्डनेस बढ़ने वाली है, वो है हमारा कार्बन। फ्री कार्बन या एटॉमिक कार्बन, सिर्फ कार्बन वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ओके। अब यही कार्बन जो है, जो स्टील कंपोनेंट रहेगा या जो भी हमारा कंपोनेंट रहेगा, उसकी सरफेस पर हीट के वजह से जाकर क्या हो जाता है, अटैच होता है। ओके। इस वजह से उस पर कार्बन की एक थिन लेयर क्या होती है, फॉर्म होती है। ओके। बचे हुए चारकोल का कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। ओके। जैसे कि CO2 है, उसमें से भी C प्रोड्यूस होता है, देन अगेन वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन अगेन बेरियम कार्बोनेट का बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है, जिससे हमको और कार्बन, मतलब एटॉमिक कार्बन मिलता है। अब इसमें एयर क्यों नहीं जान देना है हमको, एयर क्या करता है, अ, ये बताइए। एयर जो है हमारे, जब भी आप कोयले को जलाते हो तो उसको जलाते हो क्या करते हो, थोड़ी सी हवा देते हो ना, तो हवा देने की वजह से कोयले जल्दी जल जाते हैं। हमको यहाँ पर कोयले जलाने नहीं है, कोक को जलाना नहीं है, हमको उसमें से गैसेस प्रोड्यूस करने हैं, या हमको उसमें से फ्री कार्बन प्रोड्यूस करना है, जो कि लेयर्स में लेयर्स फॉर्म करेगा हमारे स्टील कंपोनेंट्स पे। तो अगर इसमें किसी भी तरीके का लीकेज अगर रहा एयर का, तो क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा कार्बन जल जाएगा, कोल जल जाएगा, एंड देयर विल बी नो लेयर फॉर्मेशन ऑन दी कंपोनेंट। अब अगर आप ये कंपोनेंट आप देखते हो, तो इस कंपोनेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस कंपोनेंट पे पहले किसी भी तरीके का लेयर नहीं है, बट जो कंपोनेंट फॉर्म हुआ है फाइनली, इस कंपोनेंट के ऊपर आपको एक थिक लेयर या थिन लेयर नजर आ रही होगी कार्बन की। ओके। सो दिस इज योर पैक कार्बोराइजिंग और सॉलिड कार्बोराइजिंग, जिसके अंदर सॉलिड मीडियम यूज होता है कार्बन का। ओके। सो नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस है, इसमें केस डेप्थ अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब अच्छी खासी लेयर आपकी फॉर्म हो जाती है, अराउंड 1 to 2.5 mm की लेयर कार्बन की नज़र आती है इसके ऊपर, जिस वजह से आपको ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग अलाउंस ज़्यादा मिलता है। कम डायमेंशनल चेंजेस होते हैं, मतलब डायमेंशन बढ़ता है, इसलिए आप उसमें कम क्या कर सकते हो, अलाउंसेस की मदद से उसको और कम कर सकते हो। प्रोसेस चारकोल कोक वगैरह जो है वो काफ़ी सस्ता है, इसलिए ये प्रोसेस जो है बहुत सस्ती है, चीप है। बट देर आर सर्टेन डिसएडवांटेज, जैसे कि ये मैंने आपको बोला कि एक स्टील बॉक्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स रखते हैं, बराबर है, तो इसलिए ये बैच टाइप हो जाती है। साथ ही साथ में चारकोल कोल में हाथ किसी को भी डालना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हाथ काले करना लोगों को पसंद नहीं है। दिस इज़ अ डर्टी प्रोसेस, इसमें बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, पॉल्यूशन होता है। ऑल्सो द केस लेयर, सिंस बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ रखे हैं, तो इसलिए केस की जो लेयर है, मतलब जो आउटर सरफेस पे कार्बन की लेयर फॉर्म हो रही है, वो कई बार नॉन यूनिफॉर्म रहती है, इसलिए आपको ग्राइंडिंग करना पड़ता है, सरफेस फिनिश इतनी खास नहीं मिलती, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है सब चीज़ें रखने के लिए। दैट्स वाई दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। ओके। वेर एज गैस कार्बोराइजिंग जो प्रोसेस है, इट इज़ परफॉर्म्ड इन मफल फर्नेस। मफल फर्नेस में परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका घर का ओवन रहता है, जैसे आपका माइक्रोवेव रहता है, उसी तरीके का ये मफल फर्नेस रहता है। इस मफल फर्नेस में क्या है कि जो कंपोनेंट है वो रखे जाते हैं डायरेक्टली, जैसे आप कोई भी कुकिंग की चीज़ आपके ओवन में रखते हैं, उसी तरीके से इस मफल फर्नेस में क्या करते हैं हम कि जो कंपोनेंट है उसको रखा जाता है। उसके साथ ही साथ में वहाँ पर एक कार्बोनेशियस, मतलब कार्बन रिच गैस क्या की जाती है इस फर्नेस के अंदर, डाली जाती है, ताकि वहाँ पर कार्बन, एटॉमिक कार्बन जो है वो फॉर्म हो जाए, और इस कार्बन का लेयर हमारे सरफेस के ऊपर, कंपोनेंट के सरफेस के ऊपर, केस के ऊपर फॉर्म हो जाए। इसलिए वहाँ पर एक कार्बोनेशियस गैस जो है वो हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब कार्बोराइजिंग मीडियम जो है
इसके लिए जो यूज़ होते हैं, सो वो है नेचुरल गैस, ब्यूटेन है, देन हमारा इथेन है, मीथेन है, कोक ओवन गैस है, प्रोपेन है। ये सब कार्बोराइजिंग मीडियम्स है, गैस कार्बोराइजिंग मीडियम्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, बट ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हम। इसको हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू कैन से कैरियर गैस इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है ताकि ये पार्शली बर्न हो, और जो कैरियर गैस है वो बची हुई कैरियर गैस बर्न होती है। सो प्योर कार्बोराइजिंग मीडियम नहीं यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन में होगा नेचुरल गैस प्लस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड CO2 यूज़ किया जाता है एज ए कैरियर गैस टू डाइल्यूट द मीडियम। ओके, अब इसमें क्या रहेगा, सिंपल रिएक्शन है जैसा पैक कार्बोराइजिंग में होता था कि कार्बन बनता था, कार्बन फॉर्म होता था, बट वहाँ पर क्या यूज़ करते थे हम, सॉलिड मीडियम, जैसे कि हमारा कोक है, चारकोल है, वगैरह वगैरह, ये यूज़ करते थे। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि CH4 है। सो इस CH4 का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि CH4 को जब आप हीट करोगे तो उसके हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो फॉर्मेशन होगा, जैसे कि दो हाइड्रोजन के आइटम फॉर्म हुए हैं, साथ ही साथ में कार्बन वहाँ पे डिसोशिएट हुआ है उसमें से, उस गैस में से, ओके, उस मीथेन में से डिसोशिएट हुआ है कार्बन। सो ये जो फ्री कार्बन है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्री कार्बन, ओके, एटॉमिक कार्बन, ये जाता है हमारे सरफेस के केस के ऊपर, ओके, या हमारे कंपोनेंट के सरफेस के ऊपर। ओके, सो अगेन ऑन फर्दर रिएक्शन जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और वाटर प्रोड्यूस करता है साथ ही साथ में, और कार्बन इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये प्रोसेस जो है 900 डिग्री पर की जाती है। जो कार्बन अटैच होने का टाइम पीरियड है वो कुछ 1 से 2 घंटे है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, एयर कूलिंग इस्तेमाल की जाती है। ये उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है, जैसे कि इसमें कम टाइम लगता है प्रोसेस को, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आती है, क्लीन प्रोसेस है, इसका ऑटोमेशन आप कर सकते हैं, यूनिफॉर्म लेयर बनती है, ओके, हमारे पैक कार्बोराइजिंग जैसा नहीं है, एक्यूरेट केस डेप्थ मिलती है, ओके, जितना का आपको लेयर चढ़ाना है उसके ऊपर कार्बन का उतना ही लेयर इस पे चढ़ेगा। लेबर की कॉस्ट कम है, बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि कितनी लेयर बनानी है या कितने की लेयर फॉर्म करना है, ये तो आप उसको बता दोगे लेबर को, बट वो कितने देर में वो लेयर फॉर्म होती है या कितना अमाउंट का गैस मुझे इसके अंदर पास करना है कि जिस वजह से मुझे रिक्वायर्ड केस डेप्थ मिलेगी, ये समझने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए इसको हाईली स्किल्ड लेबर लगता है। ओके, सो टू मेंटेन रिक्वायर केस डेप्थ। अगेन तीसरा टाइप है लिक्विड कार्बोराइजिंग। अब जैसे पैक के अंदर सॉलिड मीडियम था, गैस के अंदर गैस पास किया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिक्विड बाथ यूज़ करेंगे। ओके, लिक्विड बाथ क्या रहता है कि कोई बास्केट है, ओके, जैसे सॉल्ट बाथ रहता है उसी तरीके से लिक्विड बाथ रहेगा। इस लिक्विड बाथ में लिक्विड कार्बोराइजिंग मीडियम यूज़ होगा, जैसे सोडियम साइनाइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, ओके, इनके परसेंटेजेस यहाँ पर दिए हैं। अब इन परसेंटेजेस से क्या कर सकते हैं हम इसको, ये लिक्विड बाथ बना सकते हैं। इस लिक्विड बाथ में क्या किया जाता है, जो भी कंपोनेंट है वो इमर्स किया जाता है एक बास्केट के ज़रिए से। एक परफोरेटेड बास्केट रहती है जिसके अंदर से लिक्विड मीडियम पास होगा कंपोनेंट को, उस बास्केट को डाला जाता है एक लिक्विड बाथ के अंदर, और उसमें कंपोनेंट्स रखे जाते हैं जिनको हीट किया जाता है 950 डिग्री सेल्सियस पर, जहाँ पर इस सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होके फ्री कार्बन, और साथ ही साथ में इसमें एक एडवांटेज ऐसा है कि फ्री नाइट्रोजन भी इसमें प्रोड्यूस होता है। ओके, सब जब आप ये रिएक्शन देख रहे हैं तो दिस सोडियम साइनाइड व्हेन इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस NaCNO। NaCNO के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स अगर आप लेंगे तो सोडियम साइनाइड फिर से बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ में कार्बन और नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ऐसा है कि यहाँ पर मुझे कार्बन तो मिल रहा है, साथ ही साथ में क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन भी मिल रहा है, तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा बेहतर मुझे यहाँ पर देखने मिलेंगी, बिकॉज कार्बन एंड नाइट्रोजन दे इंक्रीज द हार्डनेस, वो क्या बढ़ाते हैं, हार्डनेस बढ़ाते हैं। ओके,
इसमें होल्डिंग टाइम जो है वो 5 मिनट से 1 घंटा ही है, तो इसका टाइम बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट ही प्रोसेस होती है। वापस से आप उसको क्या कर सकते हैं, एयर कूल कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके से हैं कि जो एडवांटेज है ये रैपिड हीट ट्रीटमेंट है, बिकॉज कंपोनेंट्स टेक्स अराउंड 5 to 1 hour फॉर कंप्लीट केस हार्डनिंग। एक लेयर बन जाएगी 1 घंटे के अंदर। साथ ही साथ में इसमें डिस्टॉर्शन कम रहेगा, यूनिफॉर्म डेप्थ मिलती है, इसको टाइम भी कम लगता है, और डेप्थ आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं 0.1 से 0.5 mm तक। ओके, वेयर एज जो हमारा पैक कार्बोराइजिंग है इसमें केस डेप्थ ज़्यादा मिलती है, 2.5 mm तक मिलता है, बट वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ओके, डिसएडवांटेज ऐसा है कि साइनाइड आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं, बहुत सारी सीरियल्स में दिखाते हैं कि वो साइनाइड का इस्तेमाल करके लोगों को मार दे रहे हैं या जान ले रहे हैं। तो इसलिए वो जो साइनाइड है इट इज़ वेरी पॉइजनस, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लोजिव रहता है ये मीडियम, तो बहुत संभाल के इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही साथ में इसका डिस्पोजल जो है वो डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल जाता है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट कार्बोराइजिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में बची हुई केस हार्डनिंग प्रोसेसेस देखेंगे, जैसे साइनाइडिंग है, जैसे कि कार्बोनाइट्राइडिंग है और नाइट्राइडिंग। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।